till this? If you have any questions, any doubts, you can ask me. All right. Now we are going to go for the next chapter today. Okay. Let's move ahead. So yesterday we have seen unit number 107, 108 as well. Unit number 109, very important unit we are going to have today. Okay. Yeah. As you can see here, unit number 109 is there, and we are going to see here multiple prepositions over here. All right. As you can see here in the picture, you'll find there are 5 people are standing, and they have given literally the names of them. Generally, what do I teach here? I generally give the diagram to the students, but it is not possible in this batch. Why? Because it will take a lot of time, and we don't have that much time with us to elaborate each and everything in detail. Okay. So generally जैसे डिटेल में चलता है, तो वैसे डिटेल में अगर बताने के लिए अगर मैं जाऊंगा, so बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा. So better than that, we are going to have whatever we see on the screen. Okay. So as you can see here, under, behind, and opposite, we are going to see some multiple examples of prepositions today. Okay, as you can see here, next to, beside, between, in front of, behind, etc. we're going to see in this subunit. So as you can see here, there are 5 people: A, B, C, D, and E. Okay, so all of you please pay attention here carefully. A is next to B. A is next to B. Next to मतलब यानी बाजू में. Same case, और A is beside B. A जो है वो B के बाजू में है. बाजू के लिए हमारे पास में 2 वर्ड हैं, next to and beside. Next one, B is between A and C. B is between A and C. B दोनों के बीच में है, between A and C. B is between A and C, बीच में. Next one, D is in front of B. D जो है वो B के front में है. फ्रंट का मतलब क्या होता है? देखो वहां पर उसकी पीठ है उसके पास में, इसके लिए वहां पर वो बोला जा रहा है उसको फ्रंट. उसको फ्रंट बोला है उसने. हम लोग फ्रंट किसको बोलते हैं? आमने सामने बैठने को. गलत. फ्रंट किसको बोलेंगे? जब उसके सामने वाला उसके आगे खड़ा रहेगा, उसके आगे बैठे रहेगा, पीठ की तरह से. सो डी इज इन फ्रंट ऑफ बी एंड ई इज बिहाइंड बी. बी के पीछे है वो. सो ई इज बिहाइंड बी. D is in front of B and E is behind B. E जो है वो B के behind में, पीछे है. Next one, also A is on the left. A हमारे left side में. C is on the right. C right side में है. And B is नेमत, आसिम, in the middle. At the middle, on the middle ऐसे कुछ नहीं है. In the middle है. So B is in the middle. Any doubts? No sir. Any doubts? No, sir. बहुत सिंपल है. Second thing, अब मेरा एक डाउट है. Sir, what about beside and next to? दोनों भी सेम है. Both are the same. Next to and beside both are the same. दोनों का मतलब होता है बाजू में. For example, no one is sitting beside me. No one is sitting next to me. मेरे बाजू में कोई भी नहीं है. So next to and beside both are the same. Okay. Any questions? Dumb guys. Any questions? No sir. No, sir. Okay. No. My question is there. What's the difference between middle and center? Middle and center. Center is exact place, no? Center. And middle? So And middle middle is like, the whole. the middle is also used for a line, but center is used for a circle, sir. Middle is used for the line, center is used for the circle. Not exactly. Middle is huge and center is at a point. Oh, very nice. Not exactly. Yes. Anyone else? Please have a look here. The difference between middle and center is what? Suppose this is the ground. ये ground है. Cricket ground. The pitch is in the middle. बोल सकता हूं मैं ऐसा. Pitch मैदान के middle में है. गौर से देखो, जो मैंने पिक्चर मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया हूं, उसको गौर से देखना है. The pitch is in the middle of the ground. Ground के बीच में है. In the middle है.
चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. आई सीइंग दिस ग्राउंड, green blue circle is there. Yes. Yes, sir. This is the circle. In the circle we have center. ये center है. Center किसको बोलेंगे? By the radius it is exactly the same. यहाँ पे भी इतना हिस्सा है इसका, यहाँ पे भी इतना एरिया है इसका. जहां से एरिया पूरा सेम जगह रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, उसको बोलेंगे सेंटर. एंड मिडल इज व्हाट? मिडल कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी चीज के बीच में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे 1 2 3 4 फील्डर खड़े हैं, उसके बीच में खड़ा है उनका कोच. तो जो बीच वाला है ये, इसको बोलूंगा मैं मिडल. मिडल. द कोच इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द प्लेयर्स. ये 4 प्लेयर्स खड़े हैं, उनके बीच में खड़ा है कोच. द कोच इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द प्लेयर्स. और ये जो है ये सेंटर है. किसके लिए? ये ग्राउंड के हिसाब से ये सेंटर है. इसको मैं नहीं बोल सकता हूँ द कोच इज स्टैंडिंग इन द सेंटर, बोल ही नहीं सकता मैं उसको, गलत हो जाएगा वो. सो इन द सेंटर ऑफ द ग्राउंड मतलब यानी ये वाला हिस्सा है वो सेंटर, बोले तो ये वाला. एंड मिडल मतलब यानी कहीं पे भी हो सकता है. तो जो मैंने इसके पहले बनाया था, अगर आप लोग देखेंगे पिच जो मैंने बनाया था पहले, पिच वो मैंने कुछ ऐसे बनाया था. थोड़ा सा अलग हो गया ये, सॉरी. द पिच इज इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड. मिडल उसको इसलिए मैंने बोला ग्राउंड के बीच में है वो. ये वाला हिस्सा देखो और ये वाला देखो, दोनों में डिफरेंस है. तो इसको सेंटर नहीं बोलूंगा, मिडल बोल सकता हूँ मैं. सेंटर उसको बोलेंगे जो बराबर सब जगह से सेम रहेगा, उसका डिस्टेंस यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी. चलो लेट्स गो. नाउ आई वांट यू पीपल टू मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स. मुझे सेंटेंसेस चाहिए ये वर्ड्स के साथ में. विथ, नेक्स्ट टू, बिसाइड, बिटवीन, इन फ्रंट, behind, on the left, on the right, in the middle. इनके साथ में मुझे सेंटेंस चाहिए अभी के अभी में. फटाफट सेंटेंसेस चाहिए मुझे. ओके, getting it? I want sentences with these words. Nemat, start. I am sitting next to my laptop. ऐसे नहीं बोल सकते. मैं मेरे लैपटॉप के बाजू में बैठा हूँ. लैपटॉप कोई आदमी है क्या दोस्त? गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो रहा है वो. नेक्स्ट, नंबर 2. The compost box is in between the In the middle. in the middle of books. Okay, number 3. 4 5 6 7 8. The dog is next to the bones. Correct. 9. Puno College beside to Azam campus. Beside Azam campus. 10. 11. I'm opposite to you. 12. I'm opposite to you. Sitting next to me. रतालू, इधर अपोजिट है ही नहीं. मुझे अपोजिट के साथ में सेंटेंस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इनके साथ में सेंटेंस इधर लिखे हुए बस, बाकी और किसी के साथ नहीं चाहिए. ओके, नेक्स्ट. 12. The actor is sitting next to me. 13. 14. Television is opposite to me. जल्दी. 15. 16. I'm standing next to my best friend. 17. I was sitting behind my dad. 18. 18. Disconnect and connect again, Mubashirin. Your voice is not there. 19. Asma. The hospital is behind the church. Next, once again, Nemat. The black hole is in the middle of the galaxy. 2. The cupboard is next to me. The cupboard is Next to me. 3. 4. She stands in the middle of the room.
In the middle of the room. 5. 6. 7. 8. My books are under a drawer. Next. 9. My home next to mosque. 10. 11. My brother is on the left. 12. 13. 14. I was standing in the middle of my friends. 15. 16. I'm standing in front of my car. 17. 18. My sister next to me. 19. 20. Asma. The college is next to the road. Correct. Next one, please. Now we're going to go for the next. That's what opposite and in front. अब opposite और in front के बीच में फर्क क्या है आपके सामने दिख रहा होगा आप लोगों को. Have a look here. Next, person A, person B, person C. अब यहाँ पर 3 लोग हैं. A, B and C. As you can see here, A is sitting in front of B. A is sitting in front of B. B के आगे बैठी है औरत वो. तो उसकी पीठ उसके पास में है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको बोलेंगे in front. Yes, sir. A is sitting in front of B. A is sitting in front of B and A is sitting opposite C. दोनों के faces clash हो रहे हैं. A is sitting opposite C and C is sitting opposite A. C is sitting opposite A. A is sitting opposite C. C is sitting opposite A. इसको बोलेंगे हम लोग opposite. आमने सामने. जो आमने सामने रहेगा उसको opposite बोलते हैं इंग्लिश में. Getting it? And what is in front? उसके आगे बैठा हुआ अगर होगा कोई बंदा तो opposite. That's what? एक दूसरे के सामने and in front उसके आगे अगर कोई बैठा रहेगा तो. Okay, can you please give me some sentences with in front and opposite? Yes, Nemat, please start. Her home is opposite to my home. Next, her home is opposite my home. Next, number 2. In the class, we used to sit in front of each other. Correct. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mostly in bus, people are sitting in front of each other. 9. 10. 9. Students are sitting in front of the stage. 10. 11. My mother is sitting in front of me. 12. 13. 14. I am sitting opposite of TV. Opposite the TV. Okay. 15. 16. Accident happened in front of me. Correct. 18. 17. Sorry, 17. I stay opposite to playgroup. 18. My friend in front of me. 19. The shop is opposite the bank. Correct. Asma. You are opposite to me. Correct. Now, so opposite and beside, sorry, opposite and in front, थोड़ा सा difference उसके बीच में आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. Next one is what? By. Who can tell me the meaning of by? By का meaning कौन बताएगा मुझे? Next to, beside. Cheater. यहाँ से cheat करके नहीं बोलने का, मैं अपनी भाषा में पूछ रहा हूँ. By का मतलब क्या है? जब अगर next to और beside उसका अगर meaning है तो फिर exactly meaning क्या है फिर उसका? नजदीक मतलब सर. नजदीक. और के जरिए. नहीं वो के जरिए वाला नहीं है. हाँ ऐसा क्या? चिपक के. और क्या है इसका मतलब? Proper जगह. पास. करेक्ट. इसका रियल मतलब है पास.
मेरे पास क्या है इसका रियल मतलब? मेरे पास, इसके पास, उसके पास, मेरे पास. माझ्याकडे अपन बोलतात ना माझ्याकडे, मतलब मेरे पास. तो मेरे पास में है उस चीज को बोलेंगे हम लोग बाय. ये वो वाला बाय नहीं, यहाँ जे के जरिए वो बाय आगे आने वाला है. ये वाला बाय है इसके पास, उसके पास. फॉर एग्जाम्पल, आवर हाउस इज बाय द सी. समंदर के पास है हमारा घर. आवर हाउस इज बिसाइड द सी, ये भी करेक्ट है, बट बाय द सी इज मच मोर करेक्ट. नेक्स्ट, हु इज दैट मैन स्टैंडिंग बाय द विंडो? विंडो के पास में वो आदमी कौन खड़ा है? द मैन स्टैंडिंग बाय द विंडो. If you feel cold, why don't you sit by the fire? आग के पास बैठो. If you feel cold, why don't you sit by the fire? Why don't you sit by the fire? So ultimately, you are using here by. Wait a minute, please, guys. Wait. Okay, guys, sorry. So pass में मतलब नहीं by. For example, by the sea, by the window, by the bed, by the window, by the fire. Okay. For example, the cafe is by the college. College के पास में है. There are many photocopiers by the college. College के पास में है. My class was by the hotel. Hotel के पास में थी मेरी class. So ultimately, by the class, by the fire, मतलब यानी किसी चीज के पास में, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर by. वो के जरिए वाला by वो आगे आने वाला है. Okay. He is in the bed. Is this right sentence, sir? द नहीं लगेगा आप दोस्त. बेड के लिए द लगता नहीं है. क्यों? द क्यों नहीं लगता बेड के लिए? बेड के लिए द क्यों नहीं लगता है? गाइस, बेड के लिए द क्यों नहीं लगता है? So the मतलब बहुत सारा मतलब. हाँ क्या? Not particular. ऐसा क्या? हाँ मुसैफ, मुसैफ Unique नहीं है. It's not particular unique. क्या? ओ एक्चुअली द जो है एक्टिविटीज के लिए द नहीं लगता है गाइस, याद रखना है. होम के लिए कभी द नहीं लगेगा. बेड के लिए कभी द नहीं लगेगा. एक्टिविटीज के लिए कभी द नहीं लगेगा. एक्टिविटीज के लिए द नहीं लगेगा, ध्यान में रखना है, ये बात भूलना नहीं. एक्टिविटीज के लिए द नहीं लगता है कभी भी. सो द बेड नहीं बोल सकते. ओके, आई वांट सेंटेंसेस विद बाय. में मतलब यानी पास में. फॉर एग्जांपल, द बॉटल इज बाय मी. फॉर एग्जांपल, आई हैव माय सैचल बाय मी, मतलब मेरा सैचल मेरे पास में है. आई हैव गॉट अ चार्जर बाय द मोबाइल. मोबाइल के साथ में मुझे मिला है, तो साथ में पास में मतलब यानी बाय. फॉर एग्जांपल, माय लैपटॉप इज बाय मी, मेरा लैपटॉप मेरे पास में है. गिव मी सेंटेंसेस विद बाय, वन बाय वन. नेम इट. स्टार्ट. I am sitting by my friend. नेक्स्ट, नंबर 2. Most of the time, my children are by me. 3, 4. My mobile by me. My mobile is by me. 5, 6, 7, 8. I went to the village by bus. आगे सहेली वो वाला बाय नहीं है कि सहेली, गलत हो गया सहेली. वो बाय अपना आगे आने वाला है. बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, वो वाला बाय आगे आने वाला है. ये वो वाला बाय नहीं है, ये बाय दूसरा है. बाय मतलब यानी पास में. मैं मतलब मेरे गांव को गई थी बस के पास में. सहेली सेंटेंस उल्टा हो जाएगा वो. नेक्स्ट, नंबर 9. Is by me. पार्डन? My phone is by me. हाँ करेक्ट. नंबर 9. My data by me. My data is by me. Number 10. 11. There is a kitten by me. 12. My uncle standing by this door. 13. 14. My motorcycle is by me. 15. 16. They have a house by the river. 17. Our college is by the city. Okay, 18. My books by me.
19. 19. Asma. My cat is sleeping by the door. Correct. Nemat. My laptop by me. Is by me. Was by me. Will be by me. Number 2. That hotel used to buy that on the by the road. Correct. That hotel used to be by the road. 3. 4. 4. 8. 8. 9. My report by the me. 10. 11. You can go by the corner. Very good. 12. My friend standing by me. Correct. 13. 14. 15. 14. 15. 16. I was standing by the bus stop. Sam. My house is by the bank. रतालू जल्दी जल्दी बोलने का, चुपचाप बैठने का नहीं, फटाफट बोलने का. 16. 17. My charger is by the me. By me. By me. 18. My pen's by me. 19. My charger is by me. By me. Asma. The dog is standing by the tree. Very good. Okay, by. By मतलब यानी पास में. Okay. Next one. Very important. समझने के लिए थोड़ा सा हेक्टिक है, पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी यहाँ पर. If you see there under. अभी under जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है पहले समझ लो. अंडर कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, कुछ भी फेंकने का नहीं. अंडर, व्हेन डू वी यूज अंडर? अंडर का मतलब जो है ना, अंदर होता है. अंदर, तो अंदर जो था अंडर, उसके लिए वहां से यूज किया गया. फॉर एग्जाम्पल, whenever you have roof, we are going to use there under, the word under. For example, whenever there is a roof is there. छत रहेगी, छत, किसी चीज की छत रहेगी, उस छत के नीचे अगर कोई चीज है उसको मैं बोलूंगा अंडर. जैसे कि कैट है, कैट बैठी है अंडर द टेबल, तो टेबल की ये छत हुई, बराबर ना. इस कैट के लिए, ये Yes, कैट के sir. लिए क्या बन गई, छत बन गई है. छत. ये छत बनी, इसके नीचे बैठी है वो कैट, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, अंडर द टेबल. अंडर द टेबल. नेक्स्ट वन, द गर्ल स्टैंडिंग अंडर द ट्री. ये ट्री है, ये ट्री का ये छत बना इस लड़की के लिए, इसके सर के ऊपर है ना, तो ये इसके बराबर नीचे खड़ी है, ये इसका साया है, इसके नीचे है, तो वो वहां पे हम लोग बोलेंगे द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री. ट्री के नीचे खड़ी हुई है. समझा? फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, हैव अ लुक हियर. अब रहती है अपनी बिल्डिंग, बराबर ना, तो बिल्डिंग के नीचे यहाँ पे रहता पार्किंग. पार्किंग रहती है नीचे बिल्डिंग की, बराबर ना, रहती पूरी बिल्डिंग. इफ यू सी देयर, मैं बोल सकता हूँ द पार्किंग इज अंडर द बिल्डिंग. बिल्डिंग के नीचे है, तो ये छत है ना, छत बिल्डिंग की पार्किंग के लिए है कि नहीं? Yes, sir. आई थिंक बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही शायद. Yes, sir. वैसे ही जैसे कि छत बनी है, ये टेबल इसका छत बना है, ये कैट के लिए, ये छत बनी है, रूफ बना है ये लड़की के लिए, वैसे ही पार्किंग के लिए छत बनी है ये बिल्डिंग की. समझ में आ रहा है? तो जब कोई चीज ऐसी रहेगी तो मैं बोल सकता हूँ वहां पर अंडर. फॉर एग्जाम्पल, अब जाके बेड होता है अपना, बेड के नीचे बच्चे लोगों ने कुछ समझो सामान डाल दिया, बॉल वगैरह डाल दिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द बॉल इज अंडर द बेड. बेड के नीचे है, तो नीचे है मतलब ही नहीं अंडर द बेड. फॉर एग्जाम्पल, अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, द गर्ल स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे. सेम केस, आई एम वेयरिंग अ जैकेट अंडर माई कोट. मैंने कोट के नीचे क्या पहना हुआ हूँ, जैकेट, तो कोट के नीचे है. जब कोई चीज नीचे रहेगी, अंदर रहेगी, तो हम लोग वहां पर क्या यूज करेंगे, अंडर. समझा? सेम केस. अब यहाँ पे ध्यान दो, एक और चीज है, ब्रिज रहता, ब्रिज, Yes, sir. ब्रिज के नीचे से जाते मालूम, sir. नीचे Yes, से रास्ता जाते. जाता ब्रिज के, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आई एम गोइंग अंडर द ब्रिज. आई एम गोइंग Okay. अंडर द ब्रिज मतलब मैं ब्रिज के नीचे से, तो ब्रिज अपने सर के ऊपर क्या रहता है, ब्रिज की छत रहती ना, हाँ. तो जब कोई चीज छत बनेगी उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अंडर. समझ में आया? Under. Yes, sir. समझा? थोड़ा सा Yes. समझने वाली बात है, समझो और फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना है आपको अंडर के साथ में. ओके, Okay, sir. अंडर. नेमत, मेक सेंटेंस विद अंडर. The dog is sleeping under bed. नेक्स्ट,
The socks are under the table. Next. Next. 3, 4, The girl is standing under the tree. 8. He is under the umbrella. Under the umbrella. Under the umbrella. 9, Books are under the table. 10, Children are playing under the tree. 12, Mosquito roaming under the table. 13. Yes, 11, done. No, sir. The remote Speak up. control is under that pillow. Next. 13, 14, His car is under the parking. 15, 16, I'm going to sleep under the fan. 17, The pencil was under the table. 18, The 19, cat is under the bed. 19, The man is under the umbrella. under the umbrella. Asma. The medicine is under the cupboard. Yes, Nemat once again. I'm sitting under the roof. 2, We are under the sky. 3, 4, Dog sat under a tree. 8, Meena was sitting under a tree. 9, The file under the shelf. 10, You are living under the roof. 11, He is hiding under the bed. 12, I'm under the bridge. next. 13, 14, He is sleeping under the tree. 15, 16, There are many fishes under the water. fish. 17, The shoes is under the table. So fishes नहीं बोल सकते. no, fish is already plural. The plural form of fish is fish only, not fishes. Next. 18, I'm standing under the fan. 19, He found the box under the table. Asma. The fan is under the roof. Okay. Next one. Sir, Next. Yes. I have one question. Yes, please ask. Related to under. As per your, आपने जैसे बोला, as you mentioned, कि under which is used for a roof only. If I want to say something, I am working under the manager. So it is correct? Correct. Now one more thing, guys. Do you remember आप लोगों को फर्स्ट डे पर मैंने बोला था कि एक एक प्रीपोजिशन को मैं 10 अलग अलग जगह पर यूज कर सकता हूँ, राइट? Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ पर भी है. अब जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर सिर्फ फिजिकल एंटिटी देखी है. अंडर द ट्री तो बराबर ट्री है वहां पर फिजिकली. अंडर द टेबल तो बराबर टेबल है वहां पर. अब ये जो हम लोग बोलते हैं ना, आई हैव 50 engineers under me. They have 90 corporators under them. I am working under my manager. तो यहाँ पर भी अंडर यूज होगा उसके हाथ के नीचे. पर ये किसके लिए यूज हो रहा है? पर्टिकुलर किसके लिए यूज हो रहा है? एक्ट के लिए. एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है वो. एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है वो. तो वहां पे हम लोग को यूज करने के अलग अलग टाइप्स हैं और वो एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो यही अंडर है जो कि एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है. एनी डाउट्स? नो. हियरिंग इट? बिल्कुल करेक्ट है सर. नेक्स्ट. अब ये थोड़ा सा सर्कस है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर. सर्कस है मतलब यानी क्या है कि थोड़ा सा पागलपन है यहाँ पर. जो बच्चे लोगों को जल्दी से समझ में आता नहीं है, क्योंकि मैं अभी जैसे कि एक 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स लोगों को ये बात जल्दी से समझ में आती नहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय अबव एंड बिलो. तो उन लोग डायरेक्टली एक ही सवाल करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो. सो अंडर एंड बिलो के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा अभी. यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? नेक्स्ट. नाउ अंडर वी आर यूजिंग फॉर द रूफ. अंडर के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह है क्या? नहीं. अंडर किसी की चीज भी मतलब बेड के नीचे भी हो सकता है, ब्रिज के नीचे भी हो सकता है,
ट्री के नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बराबर। बट बिलो एंड अबव वी आर यूजिंग फॉर एन एवरेज लाइन। हम लोग अबव एंड बिलो यूज करते हैं एक एवरेज लाइन के लिए। एवरेज लाइन से मतलब क्या है मेरा? एवरेज लाइन का मेरा मतलब ये है कि कोई एक एवरेज लाइन अगर ऐसी, जैसे कि यहाँ पर इसने दिया है, ऑलरेडी इसने लाइन मार्क कर दिया है, तो जब कोई चीज अगर ऐसी एवरेज लाइन पे अगर रहेगी तो मैं उसके लिए यूज कर सकता हूँ अबव एंड बिलो। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अबव द लाइन, लाइन के ऊपर है, तो ऊपर का मतलब होता है अबव। एंड बी इज बिलो द लाइन, बी जो है लाइन के नीचे है, उसको मैं बोलूंगा बिलो। सो ए इज अबव द लाइन, बी इज बिलो द लाइन। अबव द लाइन, बिलो द लाइन, तो मतलब नहीं, जो अबव और बिलो किसकी वजह से चल रही है? एवरेज लाइन के वजह से Line. सर। करेक्ट, वो एवरेज लाइन की वजह से चल रही है। जब कोई चीज बीच में एवरेज वाली अगर रहेगी तो ही मैं अबव और बिलो बोल सकता हूँ, वरना तो नहीं बोल सकता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर उसने कुछ एग्जाम्पल दिया है, द पिक्चर्स आर अबव द शेल्व्स। ये शेल्व्स है, मतलब ये बराबर हटेंगे कि यहाँ से ये शेल्व्स हटेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये हटेंगे नहीं, कांस्टेंट ही रहेंगे। सो मैं बोल सकता हूँ द पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स है, द पिक्चर्स आर अबव द शेल्फ, तो मतलब ये नहीं, बराबर ये एक एवरेज लाइन है, कांस्टेंट है, हिलेगी नहीं यहाँ से, बराबर ना। और बराबर इसके ऊपर है, तो मैं बोल सकता हूँ द पिक्चर्स आर अबव द शेल्व्स। एंड अब ये फोटो यहाँ से हटने वाले क्या बोले, आज यहाँ पर है, थोड़ी देर कल रात में खिसकते ऊपर चले आएंगे, ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगी रात रात में, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये जो पिक्चर से बराबर ये इनके एक लाइन में है, बराबर ना, तो ये एक एवरेज लाइन बनी यहाँ पर। अब बराबर में क्या बोलूंगा? द शेल्व्स आर बिलो द पिक्चर्स, वो बिलो पिक्चर्स के बिल्कुल नीचे हैं, तो उनके नीचे है मतलब बिलो द पिक्चर्स। समझ में आ रहा है? एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, द स्कीम इज ओनली फॉर द पीपल हु आर अबव 18। 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए स्कीम है, तो 18 क्या बना भाई? Average line. एवरेज लाइन, Average line. करेक्ट। अब ये एवरेज लाइन बराबर मैंने 18 दिया, 18 का 18.25 होता है क्या? No, पौने 18 No. चलता। अपने खाला बिला की बात चलती, ओ सर चला के लो ना प्लीज मेरे लिए, ऐसा क्या भी हमारे लिए नहीं करेंगे तुम? 18.25 तो है उन्हें, आओ चलता ना पौने 18 हो, उसको लो ना, आपा लो ना, उसको कलश में लो ना, कलश बिलस में कुछ नहीं लेते। यहाँ पे 18 बोला तो 18। सो लिटरली अबव एंड बिलो एक एवरेज लाइन के लिए यूज करेंगे। The people who are below 18 will not get the license. उन लोगों को लाइसेंस नहीं मिलेगा जो below 18 रहेंगे। So below 18, 18 के नीचे, above 18, 18 के ऊपर, समझा? So कोई एक एवरेज लाइन रहेगी तो मैं बोल सकता हूँ above and below। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के अंदर ऐसा है कुछ, ये जो वॉल है, अभी मैं आपको हॉल में लैपटॉप लेके नहीं जा सकता, पागलपन लगेगा वो। यहाँ पर है स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड है, ओके। अब स्विच बोर्ड के यहाँ पर है मेरी घड़ी, क्लॉक है, ये क्लॉक है, मैं क्या बोल सकता हूँ? द क्लॉक इज above the switchboard. अबव द Above स्विच। अब उसकी वजह क्या है, मैंने उसको अबव क्यों बोला? क्योंकि ना तो एक क्लॉक यहाँ से हटेगी, ना ही स्विच बोर्ड यहाँ से हटेगा। ऐसा है क्या? बोले आज स्विच बोर्ड यहाँ पे है, सुबह में देखे तो यहाँ का स्विच बोर्ड बाथरूम में था, होता क्या ऐसा? आसिम होता? No, sir. नहीं नहीं, ऐसे नहीं No, होता। sir. और ऐसा होता रहेगा तो फिर घर नहीं, फिर वो फिर अपन कहीं तो और रह रहे। समीर है ना? Yes, sir. हाँ, समझदार बच्चा है माशाल्लाह। अब जल्दी से सेंटेंस बनाओ अबव एंड बिलो के साथ में, जल्दी जल्दी। थोड़ा सा मुश्किल है पर मुश्किल को आसान करना अपना काम है, अल्लाह है अपने साथ में। मेक सेंटेंसेस नाउ विद नेमत, अबव एंड बिलो। calendar is below the clock. गुड। नंबर 2, The Wi-Fi router is above the switchboard. करेक्ट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Fluorescent tube above the window. correct. 10, Books are above the table. अच्छा, is he correct? Is he correct? हजरत बोल रहे हैं No, sir. अबाउट द टेबल, मतलब इन टेबल और बुक्स के बीच में ऐसा कुछ तो सर गैप रहेगा, बुक्स यहाँ है हवा में। The table. सर फेकर ऐसा हो गया सेंटेंस वो,
जो इमरान ने सेंटेंस बनाया बिल्कुल करेक्ट था वो। इमरान ने जो भी फेंका है वो क्या फेंका हमारे इमरान भाई ने? अबव द विंडो, बराबर ना? Yes. द फ्लोरेसेंट ट्यूब इज अबव द विंडो, ये विंडो है, ये वाली विंडो है। विंडो के ऊपर हमारी टुप लाइट, जो आपकी टुप लाइट है वो विंडो के ऊपर है, इसको मैं बोल सकता हूँ अबव। क्यों? क्योंकि ना तो ये विंडो यहाँ से हिलेगी ना ये ट्यूबलाइट यहाँ से हिलेगी। आप लोगों की समझ में आ रहा है? तो इसको मैं अबव बोल सकता हूँ, अबव बोल सकता हूँ। बट द बुक्स आर अबव द टेबल, टेबल के ऊपर हैं, तो यहाँ पे बुक्स हवा में तो नहीं रह सकते। हाँ, यहाँ पे स्टैंड में अगर लगे हुए हैं बुक्स टेबल के ऊपर तो बातें का लगे। सर क्या ऐसा है? नहीं। हाँ, तो फिर सर वहां पर अबव नहीं बोलेंगे अपन। ओके। चलो कंटिन्यू। ओके, चलो 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 नेक्स्ट। अबव मतलब ये नहीं कोई चीज रहेगी ना, हवा में रह सकती है वो, ऊपर, ऊपर चाहिए हम लोगों को अबव। यस, नंबर 11। There is a huge space above. गुड। 12, 13, 14, 15, 16। The अरे कहाँ teapot गए? is यस, 16, the teapot is below the TV. 17, The calendar is above the table. 18, Switchboard above the machine. 19, Asma, The frame is above the desk. Sahana, Gundi Sahana madam. The picture is above the wall. हाँ, very good girl. चलो once again, Nehmat. 70% and above can apply for the job. Very good. 2, Clock is above the door. 3, 4, My grade is above the average. 6, 7, 8, The fan is above the furniture. 9, Exhaust fan is above the window. next 10, A signboard kept on above the roof. 11, Below 9 not accepted. very good. 12, I'm below 18. 13, 14, There is a TV above the bed. 15, 16, The fuel level is below empty. correct, very nice, very nice. 17, The bag was above the okay, not exactly, but 18, 19, We are flying above the clouds. correct. Asma, TV is below the frame. very good. Sahana, Sahana. Okay, any doubts to anyone? No, sir. Let's go for the next one. Yes, sir. I have one question. For example, I want to say something about same as above. I can say that same as above. For Correct, same example, as above. Yes, बोल सकते हैं, एड्रेस वगैरह के लिए बोल सकते हैं। Wait a minute, wait a minute.
Yes. Where were we? Yes. Above or Can we below? use a price for above and below? Yes. Below 1K, above 2K. Yes, we can say, Samir. Yes, we can say. Yes. So Imran, Okay, you were I, saying that can we say same as above in the addresses and all? Absolutely. While filling the forms and all, we can say same as above. For example, the example is same as above. The matter is same as above. ऊपर वाले के जैसा है. Yes, sir. Yes, because see उनके लिए एवरेज लाइन है ना. अब जैसे कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो आप लोग बोल सकते हैं कॉलम के अंदर आप जो भी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेम एज अबव. ऐसे टिक करने के लिए आता है ना, Yes, लिखा हुआ sir. रहता है सेम एज अबव. ऊपर वाले के जैसा है, जैसे ये मैंने भरा सब वैसे ही ये भी वाला है, तो सेम एज अबव. तो बराबर ही अबव मतलब ही नहीं है क्या जगह यहाँ से हटने वाली, क्या No. नहीं हटने वाली, कॉलम नहीं हटने वाला वहां से. एनी डाउट्स एनीवन? Yes, sir. I have one more question. Yeah. Which is related to under or below. Okay. Okay. If I want to say something related to table, I think so. There is the information below the table, or there we can say that there is the information under the table, which is correct. Like, Information. yes, I want to say something about the table. Table in the sense there are some columns, there are some rows. Okay. Okay, So that table. there is a detailed description below the table or under the table, which is correct. Means what? You have made a table in Excel sheet, right? Yes, 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 sir. And you are saying the information is under the table or below the table, right? Yes, yes. Both are wrong. Both are Why? wrong. Why? Because under and below, generally for such kind of things we are using for physical entities. And ये जो table आपने बनाया Excel के अंदर, उसको touch कर सकते हैं आप हाथ से? No. ये आइडिया वाली कैटेगरी में आ गया, तो वहां पे ना अंडर चलेगा ना बिलो चलेगा. अब यहाँ पर चलेगा क्या? The information is in the table. वहां पे लगेगा in. बिल्कुल in लगेगा वहां पर, ना वहां पे अंडर लगेगा ना बिलो लगेगा ना अबव लगेगा, in लगेगा. ओके सर आई थिंक उसका क्वेश्चन था कि अगर कुछ टेबल के नीचे कुछ लिखा है या कुछ ऊपर लिखा है, ऐसा उसका मतलब था शायद. सर ऐसे लिखा, सर ऐसा बोला क्या आपने? Sir, no, you are correct, sir. मैं करेक्ट हूँ ना? ओके, थैंक यू. चलो एक और बार अपना कंफ्यूजन मैं पूरी तरीके से मिटा देता हूँ, वरना मेरे को नींद भी नहीं आई तो. There is a I want to say something. My intention only, I want to explain the detail regarding the table, so we can use those things or not. We can. अभी आपको पूरा सर पूरा डिटेल में अपन यहाँ पे कर देंगे सर. आपको टेबल दिख रहा है ये सामने आपके? Yes, sir. वेरी गुड. अभी समझो मैंने यहाँ पर एक टेबल मैंने ये किया हूँ, ड्रॉ किया हूँ. ओके गुड. अब सपोज ये एक टेबल है. ओके सर, ये टेबल है, राइट? Yes, ये sir. येलो वाला एक टेबल है. मैंने टेबल के ऊपर यहाँ पे नाम दिया, कुछ भी एक मैंने नाम दिया, जिसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हूँ टाइम टेबल. ओके नेक्स्ट वन. और यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ शेड्यूल. सो मैं क्या बोलूँगा अब, अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा वो भी बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा आसिम, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा समीर, नेक्स्ट मैंने लिखा तब्रेज, नेक्स्ट मैंने लिखा इमरान. ठीक है सर. अब ध्यान दीजिए प्लीज ऑल ऑफ यू. इमरान हो गया. ओके सो एज यू कैन सी हियर there are 4 names in the table. ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ. There are 4 names in the table. In the table, table के अंदर है, inside. And there is information in the table
मतलब टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर है, ये टेबल है. नेक्स्ट वन, आई हैव रिटन टाइम टेबल अबव द टेबल. क्या बोलूंगा मैं? I have written timetable above the table and I have written schedule below the table. भाइयों और सबकी बहनों, ये below क्यों बोला मैंने यहाँ पर इसको? Yes, why there is a reason the schedule is below the table. ये table के because नीचे. 3 का gap है इसके वहाँ. लिए एवरेज लाइन ये है. Yes. इसके लिए एवरेज लाइन, खालू लोग, एवरेज लाइन ये है. Yes. समझा? ब्लो लाइन के लिए, अबव लाइन के लिए, समझा ना? टेबल यहाँ से हटेगा क्या? टेबल यहाँ से हटेगा? है कि किसी के अंदर हिम्मत हटाने की? नहीं है कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ. बट ये बराबर एक एवरेज लाइन बनी. उस एवरेज लाइन के ऊपर अगर कोई चीज रहेगी तो मैं क्या बोलूंगा? अबव. वो एवरेज लाइन के नीचे अगर कोई चीज रहेगी तो बिलो. समझा? समझा? Yes sir, yes. भारी था ना? Yes sir, वही कंफर्म कर रहा था मैं. अगर टेबल होता और टेबल का डिस्क्रिप्शन नीचे देना है तो we can use I can use a below. यस यस यस, बिल्कुल सर. कोई अगर सर आपके बीच में है तो फिर आप आसिम को लेके जा सकते हो, झगड़े करने के अंदर एक्सपर्ट है. सो एनी डाउट्स? No sir, I am not. कीपिंग देयर. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट यूनिट बहुत खतरनाक वाला, बहुत जबरदस्त वाला यूनिट है. बहुत कुछ सीखने मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर. Up, over, through, etc. In the next unit, you are going to see multiple prepositions. बहुत सारे preposition देखने के लिए मिलेंगे. Up, over, through, etc. The first one is very easy. To and from. अभी बचपन से हम लोग ये to and from पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं? From Anas to Musayf. 11 रुपए का हदिया है कि नहीं? हमारे दिन न्याज थी. नैज के ऊपर फकीर लोग को बुलाए थे तो उधर साहब को 11 रुपए बांटे. तो फ्रॉम समीर टू इमरान. सो फ्रॉम एंड टू बचपन से देखते आ रहे हम लोग. फॉर एग्जांपल, जेन इज गोइंग टू फ्रांस. टू फ्रांस, फ्रांस को जा रही है जेन भाभी. वी वॉक फ्रॉम द होटल टू द स्टेशन. फ्रॉम द होटल टू द स्टेशन. होटल से स्टेशन को. सो को, टू और फ्रॉम से, इतना ही है. A lot of English words came from Latin. From Latin, Latin से आए हैं. होटल से स्टेशन को, फ्रांस को. Okay, can you please give me some sentence with from and to? बहुत easy है. Okay, नेमत, from and to. नेमत, मेरा नेमत. I am Kari. अरे रथलू, shut up. Make sentences. She's coming from the hospital. अरे नेमत, बुक के वाले नेमत. She's coming from college to my house. चलो next, number 2. We are walking from our home to the garden. 3, 4, 8, She is going to park. 9, The Deccan Express depart daily from Mumbai to Pune. okay, 10, My land is from here to that pole. oh my god, 11, Musep, 12, I'm from Pune. अच्छा, 14, They are going from Pune to Delhi. oh my god, 15, 16, It takes 15 minutes from my house to college. good, 17, I walked from the home to the can we say the home? college. Can we say the home? No. Why? Why? Activity. Activity. आता यार, आता. Very nice, very nice. 18. Mubashreen. 19. You need to work hard. आगे सहेली वैसा नहीं. You need to work hard, but मुझे 2 चाहिए. To work hard नहीं, मुझे 2 position के लिए चाहिए. To France, to Italy, to Germany, to college, to bank, to the restaurant, to the markets. ऐसा. Asma. I'm going to college tomorrow. Sahana. She walked from the garden to hotel. Walked.
ट का साउंड आना चाहिए मैन, वॉकड नहीं बोल रहे का उसको. ओके गुड. ओके वंस नेक्स्ट वन, टू एंड फ्रॉम बचपन से आता है हम लोगों को. नेक्स्ट द डिफरेंस. ओके इनटू एंड आउट ऑफ. अब यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त चीजें सीखने वाली. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इनटू एंड इन? कौन बताएगा मुझे? आउट ऑफ तो सबको मालूम है. आउट ऑफ मतलब यानी बाहर. आउट ऑफ द हाउस घर के बाहर. आउट ऑफ द गेट गेट के बाहर. आउट ऑफ स्कूल स्कूल के बाहर. आउट ऑफ क्लास क्लास के बाहर. आउट ऑफ द मॉल मॉल के बाहर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू? हु कैन टेल मी दिस? आसिम. इन मीन सर पहले से ही अंदर है, और इनटू मतलब हम जाने वाले. जाने वाले. मतलब इनटू मतलब ऐसा होता है. वेरी गुड बॉय. कंटिन्यू कंटिन्यू. यस हम जो इन एंड इनटू. एक्टिविटी करने वाले हैं अंदर जाके. जैसे कि अनहा, जैसे कि सर इन मैंने पहले से ही है, मतलब सर ऐसा भी हो सकता है. इनटू मतलब very good. That is correct. That is correct. What is into? For example, she is in the room. She is going into the room. Very good girl. But मैंने example नहीं इन पूछा मतलब था, पहले सही. That is the intention. It means. सर क्या पिक रहे सर, पिक वापस पिक प्लीज. It means हम वो करेंगे, यानी वो चीज उसके अंदर है. You can अच्छा. say it. कितने लोगों को समझ में आया इमरान भाई की बात? तो मतलब सब कुछ उसको मतलब ये तो एक्शन लेने वाले हैं. वी आर Very good. Very good. This is correct मुंतहा. If you see there, इनका मतलब होता है जब कोई चीज अंदर ऑलरेडी रहती है. ये हम लोगों ने परसों भी देखा था, बराबर ना? यस सर. परसों नहीं कल देखा था. Yes, sir. झूठे लोग कल देखा था. परसों नहीं देखा था. झूठे लोग कल देखा था. फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर लिव्स इन लंडन, बराबर ना? तो ऑलरेडी लंदन में था वो. तो इन जब कोई चीज ऑलरेडी अंदर होती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन माई होम, आई एम इन माई बेडरूम, आई एम इन द क्लास, आई एम सिटिंग इन द कार. समझ में आ रहा है? तो इन मतलब ऑलरेडी है. आई एम इन पुणे, मैं ऑलरेडी पुणे में हूँ. आई एम इन महाराष्ट्र, मैं ऑलरेडी महाराष्ट्र में हूँ. आई एम इन इंडिया, मैं ऑलरेडी इंडिया में हूँ. आई एम इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में हूँ. सो ऑलरेडी हूँ, दैट इज इन. और इनटू का मतलब होता है, देखो यहाँ पे उसके इशारा से समझ जाओ जो क्या लिखा है. देखो उसने यहाँ पे इनटू जो है किसी चीज के एंट्रेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग. किसी के एंट्रेंस के लिए यूज करते हैं. जब कोई चीज के लिए एंट्रेंस होगी मतलब एंट्री मारने के लिए, किसी चीज की एंट्री के लिए. फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना एग्जाम्पल्स पे. माई फोन इज इन माई पॉकेट, मतलब क्या हुआ इसका? मेरा फोन ऑलरेडी पॉकेट में है. मेरे सैम को समझता. हाँ वेरी गुड बॉय. आता अपने वहां ध्यान दो. माई फोन इज इन माई पॉकेट, मेरा फोन मेरे पॉकेट में ऑलरेडी है, बराबर. आई एम कीपिंग द फोन इन टू द पॉकेट, मतलब आप फोन रखने वाले हैं. हाँ रखने वाला बिखने वाला नहीं. अब मैं फोन रख रहा हूँ. आई एम कीपिंग द फोन इन टू द पॉकेट, मतलब एक्शन चालू है रखने की, मतलब यानी दाखला है. वो एंट्रेंस के लिए इनटू यूज करते हैं. समझा? वो एंट्रेंस के लिए, वो दाखले के लिए हम लोग इनटू यूज करते हैं. समझा? फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. ध्यान दीजिए. एक और बार एक और खेलेंगे अपन. फॉर एग्जाम्पल आसिम इज इन कॉलेज. आसिम ऑलरेडी कॉलेज में है, बराबर. सैम इज गेटिंग इनटू द कॉलेज. सैम अभी कॉलेज के अंदर जा रहा है, मतलब यानी गेट से गुजर के अंदर जा रहा है. समझा? यस सर. तो आसिम तो ऑलरेडी है कॉलेज में, और सैम इज गोइंग इनटू द कॉलेज. वो कॉलेज के अंदर एंट्री मार रहे हैं. आप लोग कभी एटीएम मशीन गए कभी? आप लोग कभी एटीएम पैसे वैसे निकाले? अरे बाप रे, क्या बात करे, सच में? यहाँ ध्यान दो. अगर आप देखेंगे एटीएम मशीन में तो वहां पे लिखा हुआ आता है प्लीज इंसर्ट योर कार्ड इनटू द मशीन. तो वहां पे इनटू क्यों यूज हो रहा है? एक एक्शन के लिए. और वो एक्शन क्या है? इंसर्ट करने की. बराबर सहेली. कार्ड इंसर्ट करने का है उसके अंदर, इसके लिए बोलते हैं प्लीज पुट योर कार्ड इनटू द मशीन. अब यहाँ पे मेरा ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है. द कैश इज ऑलरेडी इन द एटीएम. एटीएम के अंदर कैश होता है ऑलरेडी, बराबर ना? ये ऑलरेडी इसके अंदर है. एंड वी पुट द कार्ड इनटू द मशीन.
बराबर, Yes. अंदर डालते हैं हम लोग कार्ड उसके, एंड द कैश कम्स Out of the money. Out of the क्या ATM. बात है, क्या बात है, ये दिमाग है बच्चे को, माशाल्लाह, समझ में आ रहा है. इनटू एंड Yeah. आउट ऑफ, सेम केस. अब फॉर एग्जांपल एक स्विमिंग पूल था, है कि नहीं. अब हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट लोग उसके अंदर नहा रहे थे मस्त. ए पानी पच पच पच, दिवाली है, सॉरी होली है. ए समीर, ए मुंता, ए मुसेब, ए अनस, ए आसिम, ए तू बना रहा है पानी में. और अचानक में क्या हुआ, एक कुत्ता चलता है इधर से, भागता है, गप करके उसने उड़ी मार दिया यहाँ पे. तो सेंटेंस कैसे बनेंगे, सेंटेंस कैसे होंगे, आसिम, मुंतहा, समीर, all are in the swimming pool, in the water, and the dog came into the water. डायरेक्ट गप करके उसने उड़ी मारा और तीनों चारों से साथ में खेलना चले, आप लोग आया है. सेम इनटू एंड आउट ऑफ, समझ में आ रहा है. तो अंदर आने वाली जो एक्शन है ना, उसके लिए बोलेंगे हम लोग इनटू. वी जंप्ड इनटू द वाटर, यहाँ पे एक्शन क्या है, Jump. करेक्ट. वो जंपिंग के लिए यूज हो रहा है इनटू. वी जंप्ड इनटू द वाटर. नेक्स्ट, अ मैन केम आउट ऑफ द शॉप, सॉरी आउट ऑफ द हाउस एंड गॉट इनटू द कार. एक्शन क्या है, बाहर आना. गॉट, करेक्ट, अंदर घुसना. तो वो कार में घुस गया अंदर, मतलब गॉट इनटू द कार. बाहर आया, केम आउट ऑफ द शॉप. नेक्स्ट वन, व्हाई आर यू लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, आप विंडो से बाहर क्यों देख रहे हैं. I took the old batteries out of the radio. रेडियो के बाहर निकाला मैंने. I took old batteries out of the radio. Can you please give me some sentence with into and out of? Into and out of के साथ में sentence चाहिए मुझे. One by one. नियामत. The sun rays are coming in the earth atmosphere. हेकू. Into चाहिए मुझे. Number 2. They entered into the station. Correct. 3. 4. The water is into the bucket. I'm pouring water into the glass. अब ध्यान दीजिए, मैडम सेंटेंस क्या बना रही है वहां पर ध्यान दीजिए प्लीज, ऑल ऑफ यू. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ओके, हम लोग बोल सकते हैं द वाटर इज इन द ग्लास. अभी पानी ऑलरेडी ग्लास में है, बराबर ना. और अगर हम लोगों ने बोला आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास, तो मतलब नहीं वाटर अभी ग्लास के अंदर जा रहा है. तो वो एंट्री के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एंट्री के लिए क्या यूज करेंगे, आता. वेरी गुड. सो आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास. नेक्स्ट, नंबर 8. 9. The cat hiding under the into the table. ऐसा फेंकने का कुछ भी, इनटू द टेबल, टेबल के अंदर घुस जा रही है. अरे दोस्त. नंबर 10. I am putting my pen into drawer. वेरी गुड. 11. I am out of India. Oh my god. 12. I'm going into the class. Very good. 13. 14. 14. Uncle Sam. I am putting. Okay. Yeah. So आपने डिस्टर्ब किया उसको. क्या बोले सर? सर बोलो. ओ बोलू. Yes, speak up. बोलू. Sam, speak up यार. I am putting books in my satchel. Into my satchel. Into my satchel. Very good. 15. Asim. Come into the room. Oh my god. 16. 16. 17. I entered into the hotel. 18. Mubashirin. 19. She lives in a hotel. नहीं सही, वैसे नहीं. Into चाहिए मुझे, into. Asma. I will insert the USB into the laptop. Very good. Sahana. I'm getting into my room. Very good. Okay, number 1 once again. एक और बात चाहिए मुझे, into out of.
I'm going to put a coin in the machine and the bottle will come out. Oh my God. Into the machine. Number 2. I threw all waste out of my home. Out of my home. Number 4. 4. Number 8. Ran into the pool. 9. Most of the user out of 90. 10. I'm removing vegetable out of fridge. 11. 12. 14. He took the old SIM card out of the mobile. Very good. 16. Look into the fish tank. 17. Why are you putting garbage out of the window? Why are you throwing garbage out of the window? 17. 18. Into 19. 18. 19. 19. Asma. Why are you sleeping out of the house? Sahana. His phone is out of the room. Very good. Okay. Now we are going to go on and off. ये on और off जरा थोड़ा अलग है. ध्यान दीजिए please. ये वाला on अलग है, हाँ. ये off भी अलग है. On और off का थोड़ा सा मतलब यहाँ पर अलग है. यहाँ पर on का मतलब होता है चढ़ना और off का मतलब होता है उतारना. ओके. ऑन का मतलब होता है चढ़ना और रखना ऊपर. ओके. ऑफ मतलब है नहीं उतारना, छोड़ना, उतारना और छोड़ना. ठीक है. ऑन चढ़ना और रखना, ऑफ मतलब उतारना और छोड़ना. फॉर एग्जाम्पल, डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल. डोंट पुट योर फीट ऑन द टेबल. ऊपर मत रखो, मतलब चढ़ा के मत रखो. नेक्स्ट, प्लीज टेक ऑफ योर फीट ऑफ द टेबल. प्लीज टेक योर फीट ऑफ द टेबल. निकालो, हटाओ. निकालो और हटाओ का मतलब क्या होता है? ऑफ. टेक ऑफ योर फीट. टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब इन्हें हटाओ और निकालो. नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू हैंग सम पिक्चर्स ऑन द वॉल. आई एम गोइंग टू हैंग सम पिक्चर्स ऑन द वॉल. नेक्स्ट, बी केयरफुल, डोंट फॉल ऑफ योर बाइसिकल. डोंट फॉल ऑफ योर बाइक एंड डोंट फॉल ऑफ योर बाइसिकल. बाइक से गिर मत जाना. बाइक से गिरना मतलब नहीं उतरना, गिरना, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ऑफ. फॉल ऑफ, नीचे गिरना. नेक्स्ट, वी गॉट ऑन द बस इन प्रिंस स्ट्रीट. वी गॉट ऑन द बस, हम लोग बस में चढ़े. हम लोग बस में चढ़े. चढ़ना का मतलब होता है ऑन. समझा? तो ये वो वाला है ऑन एंड ऑफ. ऑन एंड ऑफ. टर्न ऑफ, टर्न ऑन, टर्न ऑन, टर्न ऑफ. ये वो टाइप का है. यस, समझा? ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा ट्रिकी है और ज्यादातर यूज होता नहीं है. होता यूज भी होता नहीं है. अब फॉर एग्जांपल, इसका सबसे भारी मीनिंग जो है वो मराठी में आता है. मराठी में क्या बोलते हैं अपन? घाल आणि काढ. है ठीक है नहीं? Yes, sir. ए क्या कर रही नीलोफर? मेहंदी काट रही. तो काट रही, वो वाला काट रही नहीं. हाँ, काट मतलब नहीं निकाल, ये वो वाला है ऑफ. समझा? ऑफ, निकालना. कैन यू प्लीज गिव मी सम सेंटेंसेस विद ऑन एंड ऑफ? फॉर एग्जांपल, सुन लो पहले, कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ. प्लीज पुट ऑन योर फोन ऑन द चार्जर. प्लीज पुट योर फोन ऑन द चार्जर. चार्जिंग पे लगाओ. प्लीज पुट योर फोन ऑन चार्जिंग. फोन ऑन चार्जिंग, चार्जिंग पे लगाओ. तो वहां पे लगाओ का मतलब होता है ऑन. प्लीज टेक ऑफ योर फोन ऑफ द चार्जिंग. प्लीज टेक ऑफ द फोन मतलब फोन निकालो. प्लीज टेक ऑफ द चार्जर, चार्जर निकालो. समझा? फॉर एग्जाम्पल, पुट ऑन द शूज, शूज पहनो. टेक ऑफ योर शूज, शूज निकालो. पुट ऑन द जैकेट, जैकेट पहनो, जैकेट गाला. एंड टेक ऑफ द जैकेट, जैकेट काढ़ा, जैकेट निकालो. टेक ऑफ द जैकेट. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पुट ऑन द पिक्चर्स. पुट ऑन योर डीपी, डीपी लगाओ. तो डीपी लगाओ, डीपी रखो. पुट ऑन, प्लीज पुट ऑफ योर डीपी, डीपी हटाओ. टेक ऑफ योर डीपी, डीपी हटाओ. Getting it? बहुत गंदे दिख रहे मुंह में. So take off your DP. So is that clear to all of you? On and off, निकालना,
लगाना, उसको बोलेंगे हम लोग ऑन एंड ऑफ। चढ़ाना उतारना ऑन एंड ऑफ। पहनना और उतारना ऑन एंड ऑफ। चलो मेक सेंटेंसेस विथ ऑन एंड ऑफ। ज्यादा यूज होता नहीं है बट स्टिल पता होना चाहिए। बिना टाइम पास के सेंटेंस बनाओ। नेमत, Put on your hands on the scanner. very good boy. Put off your hands. Ruby, put off your fingers. Put off your fingers. उंगलियां हटाओ। Very good. उंगलियां लगाओ on the scanner. Number 2. Don't get off from car. Very good. कार से निकले तो चप्पल से मारूंगी। बिल्कुल सही। Don't get off your car. कार से निकलना मत। Very good. Number 3. 4. Don't take a photo. Then don't take off. निकालो मत। Very good. पर ये फोन से निकालो मत नहीं है, एल्बम में से निकालो मत। ऐसा है, बच्चे लोग को बोल सकते हैं मैडम आप ये। Don't take off the photos. फोटोज निकालना नहीं वरना तो गिल्ली चप्पल है। Very good. Very good. Number 8. Take off your lenses. Very good. Number 9. Almanac on the wall. Good. Number 10. Please put on the new laptop on the table and put off the old desktop. Very good. Put on the laptop, put off the desktop. लैपटॉप रखो, डेस्कटॉप निकाल के फेंक डालो। वेरी गुड। 11. Take off your slippers. वेरी गुड बॉय। उसको फ्लिप फ्लॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लिप फ्लॉप्स। स्लीपर ब्लीपर बोलने का नहीं। क्या बोलेंगे दोस्त? फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स। नेक्स्ट नंबर 12. Take off your cap. Number 13. Very good. 14. Aeroplane is taking off from the airport. क्या बच्चा है, देखो माशाल्लाह। वेरी गुड बॉय। टेक ऑफ मतलब ये नहीं क्या करता है, ध्यान दो रे, ध्यान दो प्लीज। द प्लेन विल टेक ऑफ इन सम टाइम। द प्लेन हैज टेकन ऑफ मतलब ये नहीं उसने टेक ऑफ मतलब ये नहीं क्या किया, ग्राउंड छोड़ दिया। क्या बच्चा है माशाल्लाह। वेरी गुड। समीर भाई आपकी एज क्या है? For 24 years. नहीं ये तो झूठ बात होगी। सच्ची एज क्या है? 24 years. सच में? वेरी गुड बॉय। ओके लेट्स गो। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट डू यू डू मिस्टर समीर? क्या करते हैं आप? सर मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव। ओह माय गॉड, बुलेट। यस सर। सर कहाँ का ओरिजिन, कहाँ का है वो? सॉरी सर। रॉयल एनफील्ड कहाँ का है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रॉयल एनफील्ड? सर वो मद्रास चेन्नई। अरे शट अप, इंग्लैंड की है वो, बोले मद्रास चेन्नई की है। अरे सर कंपनी वाले को बर्बाद कर देंगे समीर भाई तुम। अरे इंग्लैंड का है वो। ऐसा दोस्त? मैं अभी ज्वाइन हूँ। हाँ क्या बोले? सर हमें ऐसा बताया गया, अभी मुझे 2 ही महीने से ज्वाइन हुए हैं वहाँ पर। अरे 2 दिन की नहीं हुए, पर आपको मेरे यहाँ पे ध्यान दो, सभी मेरे भाइयों और हम सब की बहनों प्लीज ध्यान दीजिए। एक बात कभी भी एक बात याद रखो, अगर आप लोगों को अगर इंटरव्यू जीतना है उसकी एक और ट्रिक है, बताऊं क्या? यस सर। कंपनी के बारे में मालूम, कंपनी के बारे में पहले पढ़ के जाने का। कंपनी कौन है, कहाँ की है, क्या हिस्ट्री है कंपनी का, कंपनी का फ्यूचर गोल क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, क्या करने वाली है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। कंपनी के बारे में इतना पढ़ के जाने का कि इतना उसके मैनेजर को भी पता नहीं रहेगा। जाके कंपनी में वो जब बोलेगा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, ये सवाल वो करते कि नहीं? एग्री सर 100%। आई हैव फेस्ड दैट वन। करेक्ट। थैंक यू सो मच। तो जब आप लोग देखेंगे कि जब वो आपको पूछेगा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, तो उनको उनकी कंपनी के बारे में बताने का, तो वो भी बोलेगा ओह माय गॉड, मैं कंपनी के अंदर से 20 साल से मैनेजर हूँ, मेरे को इतना मालूम नहीं है, बंदे को देखो कितना कुछ मालूम है। यार तू अगला मैनेजर बनेगा। सो नौकरी और छोकरी दोनों भी दे डालेगा। गेटिंग इट? उसके बारे में इतना पढ़ के जाने का ताकि आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। तो बाबा फरमाते हैं, अल्लामा अंसार इदरीसी फरमाते हैं, इफ यू कांट एक्सप्रेस देन इम्प्रेस। करेक्ट। ओ कंफ्यूज नहीं, इम्प्रेस इफ यू कांट एक्सप्रेस। इम्प्रेस कर डालो अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो। समझे? दिस इज द फंडा, ये सबसे बेसिक फंडा है, याद रखना ये बात ही। ओके चलो लेट्स गो। तो दोस्त रॉयल एनफील्ड इंग्लैंड की है, हाँ, चेन्नई मद्रास बिद्रास की नहीं है वो। यस सर। थैंक यू। चलो रे।
समीर जस्ट किडिंग, हाँ यार रिलैक्स, मजाक कर रहा था मैं। अरे पर ये बात सच ओके है। ओके पर दोस्त ऐसा होता, हाँ कहीं पे अगर कल के दिन अगर आपको अगर आकर अगर एक आधे ने अगर समझो फॉर एग्जाम्पल किसी ने आके आपको अगर पूछ लिया, सर मैं आपकी रॉयल एनफील्ड क्यों खरीदूं, तो उसको बोलने का ये येरोडा मोइनपुरा कोंडवा की नहीं है सर, ये इंग्लैंड की है डायरेक्ट। तो ये ओके इंग्लैंड जब आ जाएगा ना उधर नाम, तो उसका प्राइस डबल जगह पे लेके आएगा वो। Yes. गुड, चलो लेट्स गो, सॉरी लेट्स गो। नंबर 15, 16, He took his ties off. very good, 17, Please take off your wallpaper. 18, 19, Asma, Sahana, Take off your hand on. pardon? Okay, once again, Nemat. Nemat, number 1. Put off your shoes. अरे नेमत भाई गांजा वाले। Okay, very good. Number 2. Please take off your makeover. Very nice. 3, 4. Number 4. Number 8. She will off the lectures. She will go off the lectures. Next, 9. Do not off the switch. Do not turn off the switch. Turn off. 10. Please keep up the good work. Good. 11. 11. 12. Put on the chat box. Very good. 13. 14. take off your gaze from that picture. Next, 15. 16. Put on your shirt. Good. 17. Put on your roll number. 18. Please take off your shoes. 19. Asma. Sahana. Put off your shoes. Very good. So guys, आज का अपना होमवर्क है यूनिट नंबर 110 एंड यूनिट नंबर 109, दोनों घर पे प्रैक्टिस करना है। एनी डाउट्स टू एनीवन? सर एक क्वेश्चन था आउट ऑफ के No, बारे sir. में। यस, तो हम ऐसे भी बोलते हैं ना कभी कभी कि हमको इससे दूर रहना है हमेशा, तो वहाँ पे आउट ऑफ यूज करेंगे। हाँ अवे भी यूज कर सकते हैं वहाँ पर। आई वांट टू बी अवे ऑफ इट, सर हम आई वांट ऐसा टू गो अवे फ्रॉम इट, आई वांट टू स्टे आउट ऑफ इट, आई वांट टू स्टे आउट ऑफ इट। यस stay out of my side भी बोल सकते हैं ना सर। यस यस बोल सकते हैं। स्टे आउट ऑफ माय साइड, आई वांट टू स्टे आउट ऑफ दिस वन, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, बाहर रहना चाहता हूँ इससे मैं। आपने अवे भी बोला क्या? आपने आवाज नहीं आई। हाँ अवे भी बोल सकते हैं। आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस वन, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। अवे मतलब ये दूर, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस वन, और आई वांट टू स्टे आउट ऑफ दिस, मुझे इससे बाहर ही रहना है, मैं इसके अंदर नहीं आ सकता काम के अंदर, ऐसा। For it, hobbies, I'm really into gaming. I'm really into. करेक्ट, यस बोल सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा घुसा हुआ हूँ गेमिंग के अंदर। आई एम इनटू माय गेमिंग्स, आई एम इनटू माय करियर, आई एम इनटू माय हॉबीज बोल सकते हैं। Okay sir, thank you. ओके थैंक यू सर। Okay guys, so Sir, we'll see can you you. say out of Yes. 4 marks? Yes, we can say out of marks. 4 marks. Yes, yes, we can say. Absolutely, we can say. Getting it, guys? Please practice at home. Correct. She was out of her mind. वो अपने दिमाग से बाहर हो गई थी. She was out of her mind. बोल सकते हैं. Okay, guys. We'll see you tomorrow on time. Please practice at home. Cheerio. Bye. Sayonara. Bye.